Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, apologies for coming late. There was some reasons uh, and I couldn't make it in time. So apologies regarding those. But now, those of you who are already waiting and watching, do let me know where you're logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जो कोई जहाँ कहीं से भी है, do let me know and I'll just go on different platforms and see whether I'm live over there, and then I can come back and start with the session immediately. Okay, so let me see if I can see myself, because at the moment I can't see myself. Okay, here I am. Right. Okay, that's another story which I can see. Okay, I'll just go on the main page and let me just check out. Yes, I can see myself. Right. So now I'm live. Those of you who have, who are still here, please let me know if you're here. Okay, let me just text some messages. Okay. Okay, so what do you think about today's topic? It's very evident and it's apparent, and I'm sure you might have guessed what this topic is about. So I'm just, going to start with it. Let me see. Okay, I have to text on other platforms to let everyone know I'm live now, so everyone can, join me in this live session. अच्छा जी, चलें जी, अब जब तक जो है बाकी ज्वाइन करते हैं, I'll just start with the session. So today's session it's about something जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है. Some of the secrets, some of the, I guess इसको trade secrets कहेंगे, या maybe it's just my genuine concern for everyone out there. So today's topic it's about how to age gracefully. So I would be discussing some tips which are very beneficial from aging point of view. So आप में से जो लोग consider करते हैं अपने आप को कि maybe you're getting older, or maybe जो है aging process it's striking on you, cause in order to deal with aging it also takes time, and it also needs certain tips and certain knowledge how to address it and how to go about it. So this is the basic thing what I want to discuss today, that how can a person gracefully age gracefully, and then these are some of the tips. These are from my personal insights and professional experiences. So that's what I want to share today. Okay, I can see Qazi Nadeem Ashraf. Walaikum Assalam. No, Qazi Saab, you are not late. Actually, I'm late. I plan to come live at 7:30 p.m. but there were some situations due to which I couldn't come live earlier. But now I'm live and I don't want to delay it any more. So I'm just going to dip into what I plan to talk about. Adil, thank you so much for joining and watching. Okay, so जब हम एजिंग की बात करते हैं ना, तो एजिंग में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, दैट इज़ रिगार्डिंग, and yes, I do want you people to put in your feedback as well and your comments, and I want you to interact as well. So ताकि जो है मुझे भी पता चले, मैं भी अपने नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर सकूँ. I would be sharing my personal insights with you, and then I want you to put in your personal experiences as well, क्योंकि आपकी भी काफ़ी professional insights होंगी and personal insights भी होंगी regarding how to age gracefully. So सबसे पहली चीज़ तो इसमें मेरे लिहाज से जो है ना, what is important, it's the mindset and it's the emotional well-being. So when we talk about mindset and emotional well-being, what do I plan to talk about? What I think is,
ये सबसे पहली जो चीज़ है ना, जब व्हेन वी टॉक अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग. यू हैव टू एम्ब्रेस योर एज rather than you become skeptical, or you start criticizing, or you become so much of a person that you're looking for validation, and maybe you're not accepting yourself as you age gracefully or as you age. So ये वाली जो है ना, ये जो प्रोसेस है, ओवरऑल जो एजिंग का प्रोसेस है, इनफैक्ट आई वुड से जो लाइफ है ना, लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रोसेस. वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. I'm sure आपको जो है ना, those of you who have read literature, you must have gone through Shakespeare's it's one of the poems, the world is a stage and every one of us is a character. So we are a character in this life. So हमारी जो life है, it's a cycle. So we all go through different cycles in our life, till we go to our final destination. So ये वाला जो stage है, getting growing into an older person from a adult person. So this is a process, and we need to embrace this process rather than we are criticizing ourselves, या हम जो है ये कहें कि we can't do this, we can't do that. So rather than doing that, we have to embrace this process, and we have to embrace age. So this is the number one thing. Then Naeem Akbar Sularia, thank you so much for joining, and walaikum assalam. So इसमें सबसे पहले तो you have to embrace the process, और you have to embrace it in the sense कि you have to acknowledge कि जो age है, जो in the time you're becoming older, it's a privilege. और ये privilege हर एक को नहीं मिलती. People pass away before getting old, or maybe they pass away due to different circumstances. क्योंकि अगर जो है हम अब जो है देखें, तो अब लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, ड्यू टू मैनी रीजंस. कैन बी स्ट्रेस, कैन बी not having a good lifestyle, can be economic conditions, can be can be so many things. So when you कैन एज, और आप वो एक ख़ास जो एज ब्रैकेट है उसको टप जाते हैं, तो यू शुड एम्ब्रेस इट, यू शुड एम्ब्रेस दिस लाइफ, क्योंकि हर एक को ये privilege नहीं मिलती. This is a privilege. I think it's a privilege and it's a blessing. So whatever age bracket you are in, you have to embrace it as a privilege. And then आपको जो है यानी देखिए, जैसे जैसे आप एज करते हैं, तो you get so much wisdom and so much life experiences. अब वो wisdom और जो life experiences हैं, those cannot be shared by very young lot. या वो वाले जो जिस wisdom और जिस life experience की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग शेयर नहीं कर सकते जिन्होंने जो है लाइफ अभी गुजारी ना हो, अभी वो जस्ट लाइफ स्टार्ट कर रही हो. So obviously when you are getting a privilege of getting older, so जब आप उस older age में आ रहे हैं, you have gained a lot of insight, wisdom point of view से, and life experiences as well, and you can share it with other people. So this is the number one thing what you need to do in order to age gracefully, and this is one of the secrets जो कि ज़्यादा लोग आपको नहीं बताएंगे. वाकिफ मुल्तानी, thank you so much for joining and watching, and thank you for your compliment. अच्छा, सो दिस इज़ द नंबर वन थिंग. अच्छा, फिर इसमें आपने क्या करना है, अनदर थिंग जो कि आपकी इमोशनल वेलबींग से कनेक्टेड है, यू हैव टू स्टे क्यूरियस. लाइक आई हैव सीन सो मैनी पीपल, वो जैसे जैसे ग्रेज करते हैं ना, जैसे जैसे एज करते हैं, तो उनमें जो एक लाइफ की क्यूरियोसिटी होती है या लाइफ से लगाव होता है, वो ख़त्म होता जाता है. क्यों भाई, क्यों ख़त्म कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि आपके जो है सर में 2-4 जो है सफ़ेद बाल आ गए हैं, या आपके मुंह पे झुर्रियाँ आ गई हैं, या यू थिंक कि भाई अब जो है आप में वो एनर्जी लेवल्स नहीं है, या अब क्या आपने करना है. नो, वो ये वाली जो लाइफ है, you have to be thankful of what you were and what you are. So आपके पास जो कुछ है, आपने उसको you have to be grateful for that, and you have to be curious. Why do I say you have to be curious? क्योंकि being old does not mean कि you should give up on things जो कि आप पूरी ज़िंदगी करते आए हैं. लाइक अगर इफ़ यू आर अ एथलीट ऑल योर लाइफ, वाई गिव अप ऑन दैट जस्ट बिकॉज के भाई शायद आपके जो
इमोशंस हैं, जो मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो गई हैं, तो आप कहें कि भाई अब तो मैं जो हूँ बूढ़ा हो गया हूँ या अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, ये तो जो है तब की बात थी जब मैं अपनी जवानी में करता था या करती थी। सो नो, यू हैव टू, इस मामले में भी आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि विथ एज, यस आई डू एग्री कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं, जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं या जो ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि यू जस्ट लीव इट। सो आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, एंड यू हैव टू रिमेन क्यूरियस। जब आप क्यूरियस रहेंगे टूवर्ड्स लर्निंग, टूवर्ड्स अडॉप्टिंग न्यू स्किल्स, टूवर्ड्स अडॉप्टिंग न्यू हॉबीज़, यानी आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कि 70 प्लस में जाकर दे एक्वायर अ न्यू हॉबी और अ न्यू स्किल, एंड दे डू इट with a passionate heart, and they love doing it। और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने शायद पहले कभी की नहीं हुई, बट it's not just a pastime, it's something good, it's overall good for your mind। क्योंकि आपका माइंड जितना ज़्यादा जो है एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा जो है क्यूरियस रहेगा, जितनी ज़्यादा उसमें डिज़ायर होगी लर्न करने की, तो यू वोंट फील ओल्ड एट ऑल। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ एंगेज इन टू गुड एक्टिविटीज़, और यू हैव टू स्टे क्यूरियस। एंड देन जैसा मैं आपको बार बार कहती हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप उस पे जो है यू वोंट बी ग्रेटफुल, तो यू आर नॉट गोइंग टू लिव लाइफ एज इट शुड बी। सो पार्ट ऑफ लाइफ इज यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, रादर देन कि भाई आप जो है इस चीज़ पे जो है अपसेट हों कि भाई ये भी खो गया, वो भी खो गया। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव, और जो भी आप जो है कर सकते हैं। इसका नतीजा क्या होगा, व्हेन यू आर ग्रेटफुल, तो आपके जो स्ट्रेसेस हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, इफ़ यू हैव अ ग्रेटफुल हार्ट। बट देन इफ़ यू डोंट हैव अ ग्रेटफुल हार्ट, तो फिर आप हर चीज़ पे क्रिप करेंगे, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और खामखा के जो है स्ट्रेस लेंगे। सो डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स ऑफ एक्वायरिंग अननेसेसरी स्ट्रेस, ज़रूरत नहीं है उसकी। So this is the number one thing regarding when I talk about mindset and emotional well-being। अच्छा, फिर अगर मैं इसमें मज़ीद बात करूँ कि how can you, कादिर एहसान, thank you so much for joining and watching। इसमें अगेन how you can age gracefully, इसमें एक और जो चीज़ है, you have to take care of your physical health। क्योंकि फिजिकल हेल्थ होगी तो आप जो है आगे प्रोसेस थ्रू कर सकते हैं ना। अब आपने एडल्ट से जो है ओल्ड एज में कदम तो रख ही लिया ना, बट यह है कि उसके साथ जो है फिर आपको मज़ीद ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी पड़नी है, ताकि आपकी जो है हेल्थ वो ऑन द बेटर साइड रहे, ना कि जो है अननेसेसरी इलनेसेस और डिजीज़ेज़ और जो है बहुत सी चीज़ें आकर जो है ना इंसान के साथ लग जाती हैं व्हेन यू बिकम ओल्ड, फॉर द सिंपल रीज़न कि उस टाइम पे जो आपकी जो बॉडी होती है इट्स क्वाइट वल्नरेबल, एनवायरनमेंट्स भी जो है अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मौसम का चेंज भी होता है। सो बॉडी में उस तरीके से इम्यूनिटी नहीं होती कि वो उन चीज़ों को फाइट कर सके। उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है कॉम्प्रोमाइजिंग एंड पे आनी शुरू हो जाती है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, उसामा अब्बासी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि भाई अपनी बॉडी को हर वक्त हरकत में रखें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप जो है योगा करें, चाहे आप ताई ची करें, चाहे आप मेडिटेट करें। तो आपकी बॉडी में ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इससे जो है आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। वॉक आप जो है, आई वोंट सजेस्ट कि भी ब्रिस्क वॉक करें, क्योंकि नॉट एवरी वन कैन डू ब्रिस्क वॉक। आई नो आई कांट डू ब्रिस्क वॉक, सो आई एम अ स्लो वॉकर। और जिस स्पेस पे मैं वॉक कर रही होती हूँ उस स्पेस पे मैं जो हूँ नेचर को एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, एंड दैट हेल्प्स मी। सो अगर आप जो है वॉक करते हैं, आपको वॉक अच्छी लगती है, तो आप वॉक कर लें, स्लो कर लें वॉक, चाहे तेज़ करना चाहते हैं तेज़ कर लें, बट यू हैव टू सी योर हेल्थ कंडीशंस। अगर आपको जो है हार्ट इश्यूज़ हैं तो यू कांट डू ब्रिस्क वॉकिंग। सो आप जो है चंक्स में स्मॉल पेसेस पे वॉक कर सकते हैं, जो भी आपके फिजिशियन आपको सजेस्ट करते हैं। सो दैट इज़ द नंबर वन थिंग इज़ फिजिकल हेल्थ के लिए यू हैव टू मूव, चाहे वो वॉक में हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, लाइट एक्सरसाइजेज हो, एंड या योगा हो। योगा जो है बज़ाहिर वो लगता है कि भी बड़ी स्लो मूवमेंट्स हैं और इससे क्या फ़र्क लोगों में पड़ रहा होगा, पर उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो बज़ाहिर जो है लगता है कि स्लो मूवमेंट्स हैं, पर वो मूवमेंट्स भी जो है ना अच्छी खासी आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेती हैं, और सही तरीके से आपके बॉडी मूवमेंट्स जो है ना योगा में जो है इमर्ज होते हैं, इंडल्ज होते हैं, और
अच्छी जो है, यानी इफ़ यू आर इनटू योगा तो यू वुड नो कि भाई किस किस तरीके से वो जो इफ़ेक्ट करती है. इट्स अ गुड मेडिटेटिव एक्सरसाइज अगर आप योगा करते हैं. देन आपने जो है फिज़िकल हेल्थ के अलावा एक जिस चीज़ पे इम्पोर्टेंस मैं ले करूँगी, दैट इज़ कि आपने ओवरऑल हेल्थ के साथ जो है ना, जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है ना, नॉट फिज़िकल स्ट्रेंथ, इनफैक्ट ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है उसको प्रायोरिटाइज करना है. वाई डू आई से दिस कि प्रायोरिटाइज करना है स्ट्रेंथ को? क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि भी जो ग्रिप आपकी कम होनी शुरू हो जाती है. इवन अगर आप जो है हैंड को भी जो है फिस्ट भी बनाएंगे ना, तो उसमें भी आपको फील होगा कि आपकी हड्डियां ना दर्द कर रही हैं, या हड्डियां जो है जोर लग रहा है उसको जो है ना फिस्ट बनाते हुए. सो उसके लिए आपने क्या करना है, यू जस्ट डू लाइट फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिससे जो है ना आप अपने स्ट्रेंथ को जो है ट्रेन कर सकें. और वो कोई इतनी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस नहीं है. आई थिंक जस्ट आप ऐसे ऐसे भी हाथ करते रहें तो उससे भी आपकी अच्छी सर्कुलेशन हो जाती है. देन ख़वातीन जिस तरह जो है किचन में आटा गूंथती हैं, उससे भी जो है ये अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है. बाकी बर्तन वगैरह जो धोते वगैरह हैं, तो उसमें भी जो है ना स्ट्रेंथ आपकी जो है ना अच्छी मेंटेन रहती है. जब आप चीज़ों को उठा रहे होते हैं तो ग्रिप और कोऑर्डिनेशन आपकी जो है इंटैक्ट रहती है. एंड देन इसके अलावा आप हल्के से डंबल्स ले लें, 10 kg का या 5 kg का या 20 kg का, और उसको जो है ना जिस तरह एक्सरसाइजेस होती हैं आप, इफ़ यू हैव सीन इन द जिम, या मे बी जस्ट आप एक्सरसाइजेस भी ब्राउज करें तो बाइसेप्स आप कर सकते हैं 4 आर्म्स के ना, उससे भी आपकी जो है ना अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है. एंड देन देर आर मेनी अदर थिंग्स, प्लैंक्स कर सकते हैं, लॉन्जेस कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं. ये सारे भी जो है ना स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ना अच्छी एक्सरसाइजेस हैं. और देन इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आपने अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना है. देखिए, ओल्ड होने का मतलब ये नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनको मैंने देखा वो कहते हैं कि जी अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो कुछ खाने को दिल नहीं करता. ठीक है भाई, आई डू एग्री, खाने को दिल नहीं करता, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना आप अपने आप को जो है फाके में मुब्तला कर लें. यू डोंट हैव टू डू दैट. बैलेंस न्यूट्रिशन मीन्स कि आप कम खाएं पर बैलेंस डाइट खाएं. और बैलेंस डाइट में आप थोड़ा भी लेंगे तो वो भी आपको आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि विद एज जो मेटाबॉलिज्म है वो वैसे ही स्लो हो जाता है. सो अब ऑब्वियसली जिस तरीके से एक बच्चे का मेटाबॉलिज्म है वो किसी एजेड बंदे का तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता ना. सो आपने अपने हिसाब से अपने फिजिकल नीड्स के मुताबिक एक बैलेंस न्यूट्रिशन रखनी है. चाहे आप चंक्स में खाएं पर थोड़ा खाएं और बैलेंस खाएं. एंड देन इट हैज़ टू बी हाइड्रेटेड एज वेल. यस, ओके काजी नदीम अशरफ, मैं अभी आपका कमेंट पढ़ती हूँ. सो आपने जो है ना, यू हैव टू फोकस ऑन एंटीफ्लेमेटरी फूड्स जो कि हेल्दी फैट्स हों, कीप अवे फ्रॉम फैट डाइट्स. और इसके अलावा जो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं. पानी इज़ द बेस्ट आई वुड से ड्रिंक, क्योंकि पानी का तो एक तो कोई मुतबादिल नहीं है. अगर आप ये समझेंगे कि जूसेस हेल्प करेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोमोट और से कि भाई डब्बे के जूसेस ले लें अगर आपसे जो है जूसेस ही आपने पीने हैं. नो, ऑलवेज गो फॉर द ऑर्गेनिक थिंग, ऑलवेज गो फॉर द फ्रेश फ्रूट्स. फ्रेश फ्रूट्स में जो पानी लेवल होगा, जो न्यूट्रिशन होगी, वो आपके लिए वैसे ही अच्छी होगी. और पानी तो जो है वैसे ही आपको 6 to 8 ग्लासेस पीने ही चाहिए. एंड देन यू नो वॉट, पानी डज नॉट मीन कि भाई पानी आप जो है जस्ट फॉर पानी पिए. लाइक इफ आई से 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो वो पानी जो है और भी चीज़ों में आ जाता है. वो अगर आप जो सूप पीते हैं, सूप में भी आपको पानी मिल जाता है. अगर आप जो चाय पीते हैं उसमें भी पानी मिल जाता है. दूध में भी 100% दूध तो नहीं होता ना, उसमें भी कुछ ना कुछ पानी की इंटेक होती है, तो उसमें भी पानी मिल जाता है. और देन देर आर मेनी अदर थिंग्स. जूसेस में भी आपको जो है एट टाइम्स उसको जो डाइल्यूट करने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं. सो उस तरीके से भी आपकी पानी की इनटेक पूरी हो जाती है. सो अपने आप को, क्योंकि आई नो देर आर पीपल जिनको पानी का टेस्ट भी बुरा लगता है, उनको पानी पीना भी जहर लगता है. सो पानी को आप इस तरीके से जो है डिफरेंट चीज़ों में जो है देख सकते हैं. देन देर आर सो मेनी वेजिटेबल्स जिसमें नेचुरली वाटर होता है. सो उनको खाने से भी जो है आपकी पानी की नीड पूरी हो जाती है. और देन डोंट स्ट्रेन योर बॉडी, क्योंकि जब आप बॉडी को स्ट्रेन करते हैं वो भी ओवरऑल आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत हाल में डाल देती है. जिस तरीके से मैं आपको
कहती हूँ कि भाई अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इतना अपने ऊपर वर्कलोड ना डालें कि आपकी बॉडी जो है कॉम्प्रोमाइजिंग एंड पे आ जाए और आपको जो है फील होना शुरू हो जाए कि बॉडी टूट रही है। जिस तरह मैंने सुबह व्लॉग करते हुए आप लोगों से जिक्र भी किया कि भाई आज मैं जो हूँ बिल्कुल ही ड्रेन आउट हूँ, उसकी वजह ये थी कि भाई मैं जो हूँ पिछले दिनों में अपने आप को ओवर स्ट्रेन कर रही थी या एटलीस्ट कोशिश कर रही थी। सो मुझे भी जो है फिर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो इसी वजह से आई थॉट टू कवर दिस टॉपिक, क्योंकि आई नो देर आर मेनी पीपल हु माइट नॉट बी एजेड येट, बट यस ये वो चीज़ें हैं जो आपके इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम काम आएंगी। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो इन सूरत हाल से गुजरते हैं, तो दीज आर द टिप्स एंड सोल्यूशन जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं डोंट लिव अलोन, मीट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। यस दैट्स अ एक्सीलेंट टिप विच यू हैव गिवन, और ये भी मैं अभी कवर करूँगी। और आपने ये भी लिखा है इवन इफ़ यू आर टायर्ड यू कैन डू समथिंग। यस आप कुछ कर सकते हैं इवन इफ़ वी आर टायर्ड। तो भाई देखें उस टायर्डनेस में भी वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स, और छोटी छोटी वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। और फिज़िकली में भी आप जो है इतना एक्टिवेटेड ना फील करें, बट कुछ ना कुछ मेंटली तौर पे आप अगर कर रहे होंगे हल्का फुल्का, तो वो भी आपको हेल्प आउट करेगा। सो उसके लिए आई थिंक उन चीज़ों में जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप मेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मेंटली लाइक यू कैन डू जो स्ट्रेटेजिक गेम्स है ना वो आप खेल सकते हैं। उससे आपका माइंड जो है एक्टिवेटेड भी रहता है, फ्रेश भी रहता है, और यू डोंट फील लेथार्जिक। और क्योंकि माइंड और बॉडी, अगर बॉडी आपकी जो है थकी हुई है तो उससे माइंड का कोई ताल्लुक नहीं है। सो माइंड को फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो स्ट्रेटेजिकली अगर आपने कुछ खेलना है तो यू कैन प्ले चेस, देन यू कैन मेक पजल्स। पजल्स इज़ अ रियली गुड एक्सरसाइज। से जो है आपके ब्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। आप कुछ पढ़ भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू, एंड देन आप और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। बट दीज आर द थिंग्स जो मेरे जहन में आती हैं कि भाई अगर आपको जो है पजल्स का या वर्ड मेकिंग का या स्क्रैबल का शौक है, सो दीज आर गुड मेंटल एक्सरसाइजेज, और ये स्ट्रेटेजिकली भी जो है अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। ओके हमजा चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। और कादिर एहसान आप कह रहे हैं कैन यू सजेस्ट सम गेम्स। यस आई हैव जस्ट सजेस्टेड सम। अगर आपने स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलनी है तो गो फॉर चेस, यू कैन गो फॉर स्क्रैबल, यू कैन गो फॉर जो आपके मेंटल एक्टिविटी को जो है डेवलप करें। यू कैन गो फॉर गो, दैट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज एंड वो स्ट्रेंथनिंग में भी आती है, और वो तो बहुत जो है कॉमन है। आपको तो अब आप किसी भी स्टोर से जाकर जो है ना वो छोटे छोटे टेबल आते हैं, उनमें जो है वो बंदे होते हैं। तो आमतौर पे जिम्स एंड स्नूकर क्लब्स इस तरह की जगहों पे होते हैं। पर अगर आपने जो है घर में जो है एक गेमिंग कॉर्नर सेट करना है तो यू कैन ऑलवेज गो एंड परचेज दिस गो गेम, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और मज़ा भी आता है। एंड देन you can play other games as well if you are into board games. So ये मैं आपको ज़्यादा board games का ही बता रही हूँ। But then again there are many other strategic games if you are a gaming kind of person, तो उस पर आप जो पीसी पे देख लें there are so many games since आप में से कई जो है टीन्स होंगे या इन योर 20s होंगे, सो आप लोगों को तो गेमिंग का ज़्यादा आइडिया होगा कि पीसी पे कौन सी है। वॉर गेम्स होती हैं ज़्यादा, सिविलाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। सो जस्ट पिक आउट द वंस जिसमें जो है ना स्ट्रेटेजिकली जो है आपने सिलेक्शन करनी है, बट दैट इज़ फॉर दोज हु प्ले गेम्स ऑन पीसी। बट अगर फिजिकली आपने करना है तो आई थिंक देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, और वो जो पिंग पोंग बॉल होता है आप वो भी खेल सकते हैं। सो दीज आर रियली गुड एक्सरसाइज। इसमें फिजिकली भी जो है एक्सर्शन आपकी होगी, और मेंटली तौर पे भी जो है ना यू विल बी स्टडिंग दी ओपोनेंट। और फुटबॉल इट्स ऑल्सो अ गुड गेम, आप वो भी खेल सकते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन कादिर एहसान रिगार्डिंग गेम्स। नसीरुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अच्छा जी, अब बैलेंस न्यूट्रिशन के बाद जो है ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फॉर एजेड पीपल, दैट इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड अपीयरेंस। स्किन की जब मैं बात करती हूँ दैट इज़
जो स्किन केयर है, यू डोंट हैव टू गो फॉर महंगा प्रोडक्ट्स, और यू डोंट हैव टू गो फॉर थिंग्स कि आप कहें कि भाई अगर मैंने ये वाला ट्रीटमेंट करवा लिया तो इससे मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, ये वाला ट्रीटमेंट करवा लिया इससे अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपनी खुराक को मैनेज रख रहे हैं ना, उसमें आपकी जो है बैलेंस न्यूट्रिशन है, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एंड एवरीथिंग इज़ इन अ बैलेंस फॉर्म, तो आपको जो है ना किसी मेकअप प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। रादर आपके जो है स्किन ऑटोमेटिकली जब आप वाटरी इनटेक कर रहे होंगे उससे भी ग्लो करेगी। फिर अगर आप जो है लाइक दिस इज़ समथिंग पर्सनली जो कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि जब आप जो है नमाज पढ़ते हैं तो यू डू वज़ू 5 टाइम्स, जब भी आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं, तो उससे भी जो है आप बहुत ज़्यादा जो है ना हाइड्रेटेड भी फील करते हैं, रेडिएट भी करते हैं, क्योंकि जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो इबादत के अपनी जो है ब्लेसिंग्स होती हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दीज ब्लेसिंग्स ओवर हियर, क्योंकि इसके लिए एक अलग टॉपिक चाहिए। दिस इज समथिंग विच नीड्स एक्सक्लूसिव अटेंशन, एंड आई डोंट वांट इट टू मर्ज विद सम अदर टॉपिक। बट येस, आप जो है ब्लेसिंग्स तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आपके जो अस्कार हैं वो पूरे हो सकें और वो फिर नज़र आते हैं। सो नेचुरली जो है अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे तो अपनी पानी की इनटेक पूरी रखें, आप सब्ज़ी भी खाएं, आप फ्रूट भी खाएं। डोंट बी अ पिकी ईटर, ईट एवरीथिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप एज करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, उसमें बहुत से मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें फॉरमोस्ट कॉन्स्टिपेशन होती है जो कि लोगों को फील होती है। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं खुराक में कोई ना कोई कमी होती है, जिसकी वजह से ना जो दूसरी आप ऑल्टरनेट चीज़ ले रहे होते हैं दैट इज़ नॉट सूटिंग यू, और ये इश्यूज आते हैं। सो मैं स्किन की बात करी थी कि स्किन केयर के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, उसको हाइड्रेटेड रखें। अगर आप सूरज में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ करें, ऑर्गेनिक सनस्क्रीन यूज़ कर लें, और एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी यू हैव टू टेक दैट, ताकि आपकी स्किन जो है दिस इज़ नेचुरल स्किन केयर। एंड देन नेचुरल एनहांसमेंट्स की जहाँ तक बात आती है तो ओवरऑल जो है आप क्या कर सकते हैं, यस यू कैन डू थिंग्स जो कि आप घर पे कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो टू पार्लर्स। आजकल जो है ना वो क्या चीज़ें जो है ज़्यादा इन हुई हुई हैं, आई डोंट नो उसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं, समथिंग गुआशा, इट्स काइंड ऑफ स्टोन जो कि आप अपने फेस पे फेरते हैं, एंड देन देयर सो मेनी डर्मा रोलर्स, सो आप वो भी फेर सकते हैं। एंड देन इन सब रोलर मोलर्स को छोड़ें, अपने हाथों से जो है ना अपने फेस की मसाज कर लिया करें। व्हेन यू जस्ट अप्लाई क्रीम, तो अपने जो फेस है ओवरऑल, अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शंस किस तरह एक्सप्लेन करूँ, बहरहाल आपने अपने फेस पे जो है ना चीक्स पे सर्कुलर मोशन में जो है ना मसाज करना होता है, एंड यू कैन सी सम सिंपल एक्सरसाइजेस फेस मसाज के लिए। सो आप वही मसाज अपने फेस पे कर सकते हैं, वही आप अपने हाथों पे कर सकते हैं, वही आप अपने पाँव पे कर सकते हैं। पाँव को थोड़ी देर जो है 5-10 मिनट वार्म वाटर में डबो कर रख लिया करें, उससे भी आपकी अच्छी टेकोर हो जाती है। विद 1 टेबल स्पून ऑफ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है स्ट्रेस रिलीवर है। सो आप जब पाँव डबो कर बैठेंगे तो आप फील करेंगे आपकी थकावट बिल्कुल उतर गई है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग स्किन केयर आप किस तरह कर सकते हैं। और रात सोने से पहले जो है यू कैन ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स या स्किन केयर कोई क्रीम यूज़ कर लें। वैसे आई प्रेफर कि भाई क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें तो बेसिक चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी यूज़ होती हैं। लाइक आई थिंक दिस वन, ये पॉन्ड्स का लोशन है विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, और दिस इज़ एक्चुअली मैं इस लोशन को जो है क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिकल, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू आवर इन्वायरमेंट। तो हमारी इन्वायरमेंट जैसी होती है, हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, यानी हमारी स्किन टोन के मुताबिक बने होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा जो है जाएंगे ना दूर के ढोल नहीं, दूर के ढोल सुहाने की बात नहीं है, आई थिंक आप जितने ज़्यादा चाहेंगे ना महंगे प्रोडक्ट्स में या आर्टिफिशियल जिनमें चीज़ें होंगी, तो वो आपकी स्किन को उतना ज़्यादा डैमेज करेंगे। आपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है, ना कि आप जो है ना खुशबू के पीछे अपनी स्किन को जो है ना डिस्ट्रॉय करें। सो ऑलवेज गो फॉर प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली ज़्यादा बेस्ड हो, एनिमल टेस्टेड ना हो, ऑर्गेनिक हो, और आप खुद जो है ना अपने प्रोडक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं घर में ही। जो लोग किचन में काम करते हैं उनको तो जो ऐसी ऐसी स्पाइसेस पता है जिससे जो है ना वो मास्क तैयार कर सकते हैं,
और क्ले मास्क भी बना सकते हैं. इनफैक्ट फेस वॉश के लिए मुल्तानी मिट्टी इट्स रियली अ गुड मास्क, वो आप यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपने जो है वैसे मास्क बनाने हैं तो बेस्ट मास्क जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरम कर देगा. अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना कोई प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों को बेच रही हूँ, बट नो, आई एम टेलिंग यू थिंग्स कि ये वो चीज़ें हैं जो आप जैसे जैसे जो एज करते हैं आपको ये चीज़ें जो है अच्छी इन हैंडी आती हैं. सो अगर आपने घर पे मास्क बनाना है तो आप जो है ना आई वुड से थोड़ा सा जो है ना दलिया लें, और दलिया में जो है थोड़ा सा आप दही डालें, और उसके बाद जो है ना उसमें थोड़ा सा जो है ना हनी डाल दें, और उसको जो है ना मिक्स करके अपने मुंह पे ना इवनली लगा दें. फिर 10 मिनट बाद ना आपको फील होगा वो खुश्क हो रहा है. जब वो खुश्क हो तो सर्कुलर मोशन में ना मुंह पे, हाथ पे, जहाँ पर भी आपने लगाया हुआ है उसको जो है ना रब करके जो है ना जस्ट टेक इट ऑफ, और फिर उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो दें. एंड यू विल सी. और उसके बाद ना यू कैन अप्लाई अ मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये पौंड ही लगा लें अगर आपको जो है इसके इंग्रेडिएंट्स जो है एलर्जिक नहीं कॉज करते. वैसे नहीं कॉज करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी स्किन टाइप्स के मुताबिक बना हुआ है. सो आप देखेंगे अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये मास्क लगाएंगे ना तो जितने आपको स्किन पे ब्लेमिशेस फील होते हैं या किसी किस्म के स्पॉट्स फील होते हैं, या अगर आपको लगता है कि ड्राइनेस हो गई है, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे. एंड यू कैन डू इट ऑन रेगुलर बेसिस रादर देन कि आप पार्लर जाएं, पार्लर वालों को इतने पैसे दें और अपने मुंह पे तरह तरह के मास्क लगवाएं जो वक्ती तौर पे तो आपको लगा कि आप हूर परी बन गए हैं, बट जब आप घर आएँ तो फिर आप वही मॉइस्चराइज़र जो है ना अपने बनाए हुए खुद यूज़ कर रहे हो कि अब आपकी स्किन जो है ठीक हो जाए. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग स्किन केयर. और देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ हैविंग सोशल कनेक्शंस एंड कम्युनिटी. काजी साहब यहाँ पर आपकी बात आ जाती है कि when you start getting old rather than living in isolation या अपने आप को बिल्कुल ही कट ऑफ कर लें, तो उसके लिए इट्स बेस्ट टू इन्वेस्ट इन गुड रिलेशनशिप्स. और वो रिलेशनशिप्स आपकी वो होंगी जिन लोगों को आप पहले से जानते हैं. जो नए लोग हैं येस दे डू कम इन टू योर लाइफ, बट ये है कि यू हैव टू सी कि भाई कौन आपके माइंड के साथ रेजोनेट कर सकता है, किन के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल, आप हर एक से बातचीत नहीं कर सकते. एंड यू डोंट नो how good or how bad they are unless and until you meet them, तभी आपको पता चलेगा. बट ये है कि जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं, आपके पुराने कलीग्स होते हैं, प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में से होते हैं या आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ हैंग आउट करें. एंड इवन इफ you yourself cannot hang out with them, then it's the responsibility of your children कि आपको जो है उनके साथ जो है गेट टुगेदर कराएं, और किसी किस्म का जो है घर में कोई छोटी सा जो है गेट टुगेदर कर लें जिसमें जो है आप लोग आपस में बातचीत कर सकें, डिस्कशन कर सकें. सो बुज़ुर्ग तो आई वुड से कि घर की रौनक होते हैं. सो आप उनको जो है इसी तरीके से जो है ना एक्टिव और इंटरेक्टिव रख सकते हैं थ्रू हैविंग सोशल कनेक्शंस. देन अगेन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ जनरेशनल ब्रिजिंग. और यू have to and you can always share your wisdom with younger generations, क्योंकि आपका जो wisdom है, आपकी जो learning है, आपका जो knowledge है, वो जो आपसे younger generations है वो उनके हमेशा काम आता है. And it's an asset. And that's the reason nowadays I can see so many younger lot approaching the older lot just to learn this knowledge or just to have an insight of this wisdom. So इसको जो है derogatory terms में ना लें कि why younger people are approaching older lot. इसको जो है पॉजिटिव टर्म में लें कि भाई जो बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि भाई जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे आपको लर्निंग का बहुत मौका मिलता है. जब आप उनकी जो है कंपनी में बैठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं. यानी वो चीज़ शायद आप जो है अपने जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उधर से भी ना सीख रहे हो, जो कि आप जो है ना इन बुज़ुर्गों की कंपनी से सीखेंगे. And they'll teach you so many things without this लालच of having something in return. वो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे. So always take them as an asset, क्योंकि these बुजुर्ग्स are an asset. And we need to teach this to our younger lot as well, क्योंकि अब जो है ना I see so many families जिसमें जो है younger lots हैं, they don't respect their older lots on many pretexts. क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा जो है
जो बुज़ुर्ग हैं उनको हाईलाइट नहीं करते. देयर आर सो मैनी डेरोगेटरी रिमार्क्स फॉर दी ओल्डर पीपल ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म्स. और बट ये है कि दैट डज़ नॉट मीन कि वी शुड अंडरमाइन आर कल्चरल वैल्यूज़. वी शुड ऑलवेज टेक आर कल्चरल वैल्यूज़ हैंड इन हैंड. अगर आप जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को देखें तो इवन दोज कंट्रीज़ हु आर मच मच मोर डेवलप्ड देन अस, they always take great pride in their elderly people. आप जापान को देखें, आप चाइना को देखें, आप कोरिया को देखें, आप इंडोनेशिया को देखें, मलेशिया को देखें. यहाँ पर जो है ये सब लोग जो है अपने एल्डरली लॉट की बहुत टेक केयर करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं. सो द सेम गोज़ फॉर पाकिस्तानी पीपल टू, क्योंकि हम भी अपने बुज़ुर्गों की जो है बड़े उनसे जो है खलूस और मोहब्बत से पेश आते हैं. ख़ासतौर पे वो लोग हु आर इनटू ह्यूमैनिटेरियन वर्क, वो तो खैर बहुत ही मोहब्बत करते हैं. और ये एक ऐसा जज्बा होता है जो कि हर एक में नहीं होता, और अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं है. तो ये चीज़ें जो है ना आपको इनकलकेट करनी पड़ती हैं अपनी औलाद में, आगे उनकी आल औलाद में. और ये तभी हो सकते हैं व्हेन यू लिव टुगेदर एज अ फैमिली, रादर देन कि भाई आप जो है ना एक अपनी जो है ना एक ढाई टोटरू कमेटी बना लें. लाइक व्हाट आई सी इज पीपल गेट मैरिड एंड देन उनका एक माइंडसेट होता है कि भाई हमारी प्राइवेसी नहीं है, सो बुजुर्ग हमारे साथ ना हो, वी शुड लिव इनटू अ सेपरेट होम, और ताकि हमारी प्राइवेसी हो. Things don't work like that, क्योंकि when you are living in a culture and you are building a culture and you claim yourself to be a cultural nation, तो cultural nations में these ethics are at the root cause, रूट होती हैं. बुजुर्ग जो है किसी भी घर की जान होते हैं, आई वुड से दैट. और होने चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपके घर में जो बरकत होती है ना वो बुजुर्गों की वजह से होती है. देन देर आर एवरी काइंड ऑफ बुजुर्ग, आई वोंट से सारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, कुछ टीजिंग बुजुर्ग भी होते हैं. बट देन this is what our religion teaches us. We need to be patient with every kind of person, so even if they are our buzurgs. ओके, आई जस्ट सी, मुझे लगता है कुछ और लोगों के कमेंट्स हैं. निज़ाम उद्दीन जमदारो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, सो ये जो है ये हो गई जनरेशन ब्रिजिंग की बात हो गई. एंड देन यू कैन ऑलवेज वॉलंटियर एंड यू कैन ऑलवेज मेंटोर द यंगर लॉट, या किसी को भी आप मेंटोर कर सकती हैं सिंस यू आर इन दैट एज ब्रैकेट जहाँ पर आप जो है लोगों की मेंटोरिंग कर सकते हैं. तो उसका जो है क्या होता है, उससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होती है व्हेन यू आर मेंटोरिंग समवन. और अगर आप ना भी मेंटोर कर रहे हो तो यू कैन कीप ऑन शेयरिंग योर नॉलेज, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है. और यू फील अ सेंस ऑफ पर्पस. सो व्हेन यू टीच समवन समथिंग गुड, यू फाइंड दैट देयर इज़ अ पर्पस इन योर लाइफ. और ऐसे ही नहीं आपकी लाइफ चल रही, ऐसे ही नहीं आप जो है बस हर दिन उठते और हर दिन उठ के फिर दिन ख़त्म होता है सो जाते हैं. यू आर डूइंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है. देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है एजिंग ग्रेसफुली, दैट इज़ अबाउट मेंटल शार्पनेस. अब वो मेंटल शार्पनेस के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको करनी चाहिए, और सॉल्विंग पजल्स, या जो है रीडिंग एक्सटेंसिवली, या फिर engaging in strategic games. These are really good brain exercises जो आपके ब्रेन को शार्प रखती हैं. एंड देन आप माइंडफुल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं. लाइक यू कैन डू मेडिटेशन, जिस तरह आप योगा कर सकते हैं, आप डिफरेंट मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं. जर्नलिंग लोगों को इतना हेल्प करती है. लाइक जर्नलिंग इज़ जस्ट, जो हमारे बचपन में कहते थे ना, जब छुट्टियां होती थी वो टीचर्स कहती थी हर रोज़ जो है डायरी लिखनी है, हर रोज़ एक पेज लिखना है. उस टाइम पे बड़ा चुभता था कि क्यों भाई, क्यों पेज लिखें और हर रोज़ क्यों लिखें, कि भाई ये हमारी जो है राइटिंग जो है इम्प्रूव करवा रही हैं, ये राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हैं. बट उसमें भी ये विजडम था कि व्हेन यू आर जर्नलिंग, तो इट बूस्ट योर ब्रेन, इट कीप्स योर माइंड एक्टिव, एंड इट बूस्ट योर मेमोरी एज वेल. पूरा दिन क्या हुआ, वो 24 घंटे आपने किस तरह गुजारे, जब आप जो है पेपर पे पेन डाउन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है. तो ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, येस दे डू बूस्ट, बट देन देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने कभी जो है ज़िंदगी में बादाम नहीं खाए होते, पिस्ते नहीं खाए होते, बट स्टिल उनका दिमाग बहुत शार्प होता है.
तो किस वजह से उनका दिमाग शार्प होता है? ये बेसिक चीज़ें जिनकी वजह से दिमाग शार्प होता है कि आप उसको मुसलसल इस्तेमाल में रखते हो. So this is another thing. And then you might like to multitask a lot, but यह है कि जब आप कोई काम कर रहे हो ना, ट्राई कि एट अ टाइम एक काम को लें, पहले उस काम को जो है सही तरीके से फिनिश अप करें, फिर दूसरा काम लें, रादर देन कि एट अ टाइम जो है ना आपने 4-5 काम जो है ना अपने ज़िम्मे जो है लगाए हुए. लाइक आई नो व्हेन आई एम एट होम आई हैव टू डू मेनी थिंग्स, बट स्टिल व्हेन आई एम इन द किचन मैं सिर्फ किचन के ही टास्क जो है वाइंड अप कर रही होती हूँ. मैं इस तरह नहीं करती कि मैंने चूल्हे पे हांडी रखी हुई है और फिर मैं बैठ के जो है लैपटॉप पे जो है अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे जो है एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, या मैं जो हूँ अपना टास्क बहुत अच्छा कर लूँगी या फिर यह मेरी हांडी सड़ जाएगी. सो आई हैव टू डू वन थिंग एट अ टाइम एंड द सेम गोज फॉर एवरी वन. जो भी टास्क जो अपने ज़िम्मे रखते हैं, पहले एक टास्क को सही तरह वाइंड अप करें, फिर किसी और टास्क की तरफ जाएं. तारिक खान बलोच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. देन इसमें जो है दिस वॉज रिगार्डिंग लिमिटिंग मल्टीटास्किंग. अच्छा, देन आपने जो है ना यू नीड टू हैव स्पेसिफिक एटीट्यूड. यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्यूटी एंड एजिंग, इट्स द एटीट्यूड जो कि डिफाइन करता है कि हाउ आर यू टेकिंग ब्यूटी एंड एजिंग. क्योंकि बाज़ लोग बहुत क्रिटिकली लेते हैं ब्यूटी एंड एजिंग को, बट देन देर आर पीपल जिनके लिए ब्यूटी एंड एजिंग इट्स टोटली डिफरेंट. फॉर मी aging is beautiful, it's a process, and I enjoy every day, and I don't creep on the thing कि भाई I'm aging. I'm very happy क्योंकि I think it's a privilege जो कि मुझे मिला हुआ है, and I can enjoy every day. I can pass my day and I can reflect over what goes by every day. So this is a privilege. And then beauty, I don't apply beauty on a standard. ब्यूटी इज़ समथिंग जो कि आपके अंदर से जो है निकलती है. ब्यूटी आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपकी ब्यूटी जो है नहीं बना सकती. आपका करेक्टरफुल होना, आपका इखलाक, दैट इज़ अ ब्यूटी. दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे लिहाज से ब्यूटी में आते हैं. आपका करेक्टर इज़ योर ब्यूटी, आपका इखलाक इज़ योर ब्यूटी, आपका लोगों के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करना इज़ ब्यूटी, आपका अपना नॉलेज जो है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न शेयर करना, दैट इज़ ब्यूटी. सो हर एक के जो है ना ब्यूटी को गेज करने के डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं. सो आई डोंट हैव दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कि भाई इतने जो है आपके BMI हो, ऐसा मुंह हो, ऐसी आंखें हो, ऐसा नाक हो, ऐसा दीज थिंग्स, these are not beauty according to me. These are just different गेजेस. दीज आर डिफरेंट स्केल्स, और इन स्केल्स का किसी को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दिस थिंग गोज विद टाइम. टाइम के साथ क्या नहीं जाता, दैट इज़ योर करेक्टर, जो कि टाइम के साथ नहीं जाता. टाइम के साथ जो है आपका जो है नॉलेज नहीं जाता है, इनफैक्ट वो नॉलेज मज़ीद बढ़ता है, यू बिकम मोर वाइजर. टाइम के साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नहीं जाते, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा होता है. सो यू हैव टू assess yourself, you have to assess how do you define beauty and age. अच्छा, देन जो है आपने जो है मज़ीद क्या करना है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ. जब आप एज करें, डोंट कंपेयर कि भाई मैंने तो ऐसे एज किया, उसने ऐसे एज किया, उसने ऐसे एज किया, या वॉट एवर, कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है. सो डोंट कंपेयर, स्टॉप दिस हैबिट ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि जितना आप अपने आप का लोगों के साथ कंपैरिजन करेंगे आप दुखी ही रहेंगे. सो आपके पास जो है, बी हैप्पी विद दैट, रादर देन कंपेयरिंग कि आई डोंट हैव दिस. सो हैव अ ग्रेटफुल हार्ट. वो कहते हैं ना कि भाई बाज़ लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है एंड स्टिल दे आर वेरी हैप्पी, एंड देन देर आर पीपल हु हैव एवरीथिंग बट दे आर नॉट हैप्पी. सो ये जो दिल का सुकून है ना, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रिविलेज. सो ऑलवेज प्रे कि भाई आपको जो है ना अल्लाह दिल का सुकून दे. ओके. Qazi Nadeem Ashraf, okay, you are saying I'm not old. Oh no, I am old भाई. I am getting old with time, with age. Yes, I am old भाई. मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है. Just because मेरा सर सफ़ेद नहीं है doesn't mean कि I'm not old. But I am getting old and I'm happy about it. I take it very gracefully. Yes, we have to keep ourselves positive, क्योंकि जो है with
जैसे जैसे आप एज करते हैं आपको जो है बहुत ज़्यादा आपका जो एटीट्यूड्स हैं वो चेंज होना शुरू होते हैं. यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. स्टॉप looking for validation from people. Stop taking people's negative thoughts and negative opinion about you negatively. Just try to analyze why is someone saying that. Or yeah, don't strain yourself because people say so much things and so many, they pass on so many comments. So just observe them, but let them go. अपने साथ जो है ना चिपका कर ना रखें क्योंकि it's not going to do you any good. Try to stay with young society. Yeah, no, don't try to stay with young society. You can mentor the younger lot क्योंकि जो यंगर लॉट है उन्होंने जो है आपके नॉलेज से फैज होना है. आप उनके साथ जो है यू विल ट्राई टू स्टे विद द यंगर लॉट, तो उसमें यू आर गोइंग टू रिसीव सो मैनी मिक्स कमेंट्स. So mixed comments, mixed compliments can be anything. So I think you can mentor the younger lot rather than staying with them. Or एक और again comparisons के अलावा what, everyone has their own story. You are your own story. So you have to embrace whatever scars you have, whatever experiences you have, and you have to celebrate your scars and your wrinkles and your gray hair. They're all symbol of experience. They're all symbol of what you have gone through over a period of time. So embrace that. Embrace each and every moment of your life. And then when it comes to financial health, तो financial health में तो मैं आपको ये कहूँगी कि always plan for peace. And what's that? कि भाई save something for things, for activities जिससे आपको जो है प्लेजर मिले. चाहे जो है आप अपने फैमिली के साथ जाएं, वो टाइम स्पेंड करें, लेयरली जो है स्पेंड करें. whatever you have in reserve, अगर आपने जो है लेयर के लिए प्लान किया हुआ है तो स्पेंड दैट ऑन लेयर. क्योंकि देयर इज़ अ टाइम जब आप इन चीज़ों को स्पेंड कर सकते हैं. एंड देन देयर इज़ अ टाइम इफ़ यू कीप ऑन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्पेंड दैट थिंग और दैट मनी जो कि आपने सेव की हुई है, मे बी जब आप जो है स्पेंड करना चाहें तो आपको जो है सेहत इजाज़त ना दें. सो रादर देन वेटिंग फॉर दैट राइट मोमेंट, जब आप कर सकते हैं, जब वो एनर्जी है, व्हेन you are with your family and your loved ones and you can do it. So do take that opportunity rather than waiting. So don't wait क्योंकि waiting से जो है you don't know what is for you in the next moment. So this is another thing. And then इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के हवाले से कि हमेशा जो है ना फोकस करें ऑन एक्सपीरियंसेस. जिस तरह जो है मैं कह रही हूँ कि भाई आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो मनी है, उससे जो है जाकर जो है उसे स्पेंड करें, उससे एक्सपीरियंसेस गेन करें. क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. मटेरियल पोजेशंस तो नहीं आप शेयर कर सकते ना. वो मटेरियल पोजेशंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप बांटने की करेंगे. सो रादर देन कि भाई आप उसको जो है क्लटर करते रहें, स्टार्ट डी क्लटरिंग. और डी क्लटरिंग के लिए बेस्ट ये है कि एक्सपीरियंसेस को गेन करें और एक्सपीरियंसेस को शेयर करें लोगों के साथ. And then what one of the last points, it's that you have to build a legacy. अब वो legacy आप किस तरह build कर सकते हैं? By creating meaningful traditions. और वो traditions जो है यही traditions हैं कि भाई आप जो आपका अच्छा नॉलेज है या आपने जो एक्सपीरियंसेस ओवर टाइम गेन किया हुआ है, यू स्टार्ट शेयरिंग दैट एंड पास देम टू द यंगर जनरेशन. एंड these can be any kind of traditions. ये customs भी हो सकते हैं, या कोई cuisine भी हो सकती है, कुछ special आपकी family recipe भी हो सकती है, या even आपकी family book भी हो सकती है. लोगों के जो है books भी हैं, family books भी हैं. So you can pass them to your younger generation. I have a family history book, both from my mother's side and from my father's side. From my father's side I have the Pracha tribe, and from my mother's side I have the Agwanana Hoshiarpur. That's my maternal side history book. So I will pass them down to my generations, to other people,
who want to read about my family history, क्योंकि then there are so many historians जो कि different जो है families की histories को जो study करना चाहते हैं, and they can always read it. And the Project Tribe, it's available, but Awanana Hisharpur, it's not available. That's just one copy which I have. So maybe it might be available in India somewhere, but not over here. So इसके अलावा जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जर्नलिंग करें, आप अपनी जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करें, एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म. यू कैन यू कैन राइट अ मेमोयर, यू कैन रिकॉर्ड योर फैमिली हिस्ट्री, या आप जो है बुक लिख सकते हैं, या इवन यू कैन शेयर योर लाइफ लेसन्स द वे आई एम शेयरिंग राइट नाउ. सो दिस इज हाउ आई एम I'm documenting my journey, my life journey. So इसमें जो है personal insights भी हैं, इसमें professional insights भी हैं, and that's the best way to pass down whatever you have learned over the years. And then whatever you're doing, always leave a positive positive contribution, ताकि जो है आने वाले जो generations हैं वो उनसे फैज़ याब हो सकें. So this is all regarding aging gracefully, and this is all what I wanted to share today. And I'm sure इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि शायद आपको कभी किसी ने आपके साथ शेयर भी ना की हो, या कहीं आपने कभी पढ़ी भी ना हो कि this is कि when you age gracefully, so what are the things you have to keep in mind. So now if you like today's session, you can leave your feedback and share your emojis, so I know whether you like this session or not. And you can also share stars as well. Ali Raza Panchwani, thank you so much for joining and watching. Okay, so now I'm waiting for your comments. If I can see them on the other screen, तो मुझे नज़र आ जाएंगे. और I'll see if I can take someone live on camera. If अगर जो है I guess net stable हो, तो I'll take yes, Qazi Nadeem Ashraf, I'll take you live अगर इस वक्त जो है स्टेबल है. And then I can also see Ashok Kumar. Okay, मैं आपको भी लाइव ले लूँगी. So let me just see. Okay, so it's adding. Let me just check. Now I can see your emojis. लगता है अब आपको समझ आ गया है. I'm through with the session, so that's why I'm asking for your comments. Okay, it's adding. I think again it's a net issue. I don't know. Okay, I think net के issues हैं, so I can't add you. It's okay. No worries. Oops. ये I guess cross भी नहीं हो रहा. Okay, so I can see Ashok Kumar. I'll see if I can add you, and अगर net issues नहीं है तो maybe you can log in. Okay, I can see emojis and emojis coming right my way, but I cannot, add you people live on the screen. So it's okay. चलें कोई बात नहीं. Okay, so this was all regarding today's topic, and Ashok Kumar, he has, given me many topics which I plan to discuss maybe tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow, when I have my session again, and I'll discuss that. Mohammed Musharraf, thank you so much for your compliment. और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी on Friday. Yes, on Friday. So I'll see you on Friday. Till then अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.